in entire Dubai. So Danube Properties is the only developer in Dubai who gives you where you give a payment, where they are giving you a payment plan of pre-handover and post-handover also. So other than any other developer in Dubai, they give you a payment plan where you have to clear all the 100% at the time of handover only. Now coming back, like whatever payment plan, pre-handover or post-handover payment plan we are giving you, there is 0% interest over the time span which we are giving you in case of the payment plan. 1% per month payment plan, 80 months payment plan. So what do we mean by 80 months? 20% you have to complete in 3 months. That is 10% in the first month plus 4% DLD, which is excluded from the 100%. So first month installment goes like this. Second month you're not paying anything. Third month you're paying another 10%. Fourth month you're not paying anything. Fifth month onwards you're paying me 1% till the handover of the property. So that's why it's mentioned 80 months payment plan. High ROI, timely delivery, prime location, luxury finishing, 40 plus amenities. So Danube as a company, we started in 1993 as a building material supplier and manufacturer. We came into the different real estate segment in 2013. It's our 11th year in the real estate segment, where we have launched around 28 projects, out of which 14 projects we have already delivered, which are completely sold out. And since many of the projects have been delivered before 6 months only, which you can check on our website, Danube Property website, Instagram, or anywhere. It got handed over 6 months early than the property anticipated delivery date. So comparatively, the apartment is fully furnished once you buy the property in the pre-launch. The reason why Danube Property gets sold out very easily is just the USPs is pre-launch you get a fully furnished apartment and then the payment plan. These two are the only foremost important thing on which you can play and sell Danube easily. These are the projects which we have launched and we have delivered. See, these are already this Elegance, it's ready to move in. It's under construction. Rest are under construction. It's so this project Pearls is delivered. It will get delivered this year. These are this year delivery project, and these are already delivered projects. So these are our different projects. I'll just give you I'll just brief out these projects to you also. This is Base 101. Before Diamonds, we launched this project. This is the highest elevation.
just come to the project brief later on. So I'm just showing you the Madhya, basics. वीडियो के Hanji? टाइम पे whatever you are saying ना, nothing is like audible. ठीक है, Oh, so acha. वीडियो प्ले So करने के बाद I was saying that in case of oceans, the project, it is a 360-degree oceanic view you have in the project. It's a project which is recently developed, a patch of land that is recently developed by government, where you have a 360-degree view of ocean from anywhere in the property you see. So that was about ocean, and in case of base, I was saying that it is in Business Bay, where entire Business Bay vicinity, it is the highest tower having 101 floor of elevation. One of the view faces Burj Khalifa, one side of the project faces Burj Khalifa, and the second side of the project, it faces Dubai Canal, City and Canal, which is one of the biggest man-made canal of entire Dubai or world, you can say. So our projects offer 40 plus amenities in the projects, and of course a payment plan. You can own your home in Dubai today with an easy 1% per month payment plan. Dubai's 1% man makes this possible with Danu Properties. Book your ultra luxury home crafted to perfection and get it fully furnished with 40 plus amenities within the property. Invest today and enjoy a high ROI and an opportunity to get the golden visa. So it's time you own your home with Danu Properties. Visit danuproperties.com or call 800. So now I have one more question. So Yes, when you're please. offering the property, I was discussing and trying to understand over the net that it is the net carpet area. Yes, there's And it no is the net concept carpet of area in the super sense areas. there is no even wardrobes also considered, right? Correct. There's no concept of super area in Dubai. It's only carpet area that's calculated in Dubai. No, in carpet area, what I wanted to know is we understand carpet area, but All to all. is the wardrobe included or excluded? Wardrobes are included in that. Only the super area, which in case you, I'll tell you, lobby area outside your So, apartment, that area is not. Madhya, I'll give you the कहाँ से question आया कैसे, because in Shobha, Yes. Shobha Properties in Dubai, as per them, as per the RERA of Dubai, cupboard area is not a part of carpet. So ये question है कि क्या ये सही है rule या नहीं है rule? This is the या question. रेरा में है ये रूल की नहीं है? But if one has to follow, everyone has to follow, right? So हमारा क्या है, जैसे हम लोग अभी बोलते हैं 424 स्क्वायर फीट एरिया, तो वहां पे ऑलमोस्ट 90 स्क्वायर फीट का एरिया आपका ऐसा होगा जो बैल्कनी में होगा, तो वो आपका कवर्ड एरिया अलग हो गया. कवर्ड एरिया को अलग मेंशन किया जाता है. फॉर एग्जांपल 423 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी. Here the nomenclature which you're using is covered area and they are using carpet area. See, for example, my property is around 420 square feet of total covered area, in which when I say carpet area means wall to wall. That means 350 would be my carpet area, and the covered area that would cover the balcony or the wardrobe small area would be somewhere around 90 square feet. So the covered area would be somewhere around 423 square feet, in which super loading, that loading and all is not considered. Rest 423 square feet would be the covered area. So basically, So again, I'm balcony repeating and my question. We are not talking about carpet area here, right? Sumit bhai, balcony and the cupboard area will be come into covered spaces. Carpet में there is only wall to wall. Correct. Correct, ये दो different nomenclature है ना? That's what I'm saying, right? Okay. And just by chance, I just want to know, out of curiosity now, since we have been boosting that Dubai RERA is very strong, what does the Dubai RERA says? Dubai RERA? What is the norms of Dubai RERA on the, I mean, it works on covered area or it works on carpet area? Carpet area. Dubai RERA works on carpet area? Yes. So we'll take this question 1-to-1 again, right? Yeah, sure. We'll take it again. And I also would like to know what happens if the project gets cancelled. I've already explained in the beginning also. I missed it. I'm sorry. Yes. Whenever you buy any property with us or any other developer, the chances of cancellation or delay is 5 to 10%. But however, if something happens like that, there is a RERA and the escrow account over there. Whatever money you deposit in the escrow account, it will
go to the developer in peanuts once the construction stage keeps on getting delivered. So how it happens if the project doesn't get delivered to the client after a couple of anticipated delivery date, and then 6 months is given as extension, then the client has the authority to go to the DLD, Dubai Land Department. They can either refund the money back, or they will ask you to go into maybe the other project of the same developer, or the other developers they can also suggest where you can turn out your money. So your money is safe basically. Okay. Okay. Yes. So now this again, the project again, Sports by Denyu, which is in Dubai Sports City, it's having more than 45 plus amenities in the project, where 30 plus amenities are almost sports linked. For example, tennis court, badminton court, cricket pitch, and these particular our sports linked amenities would be linked with a private mentor, a professional coach and mentor, who will not only I mean, like, you will not only have an amenity over there, but they will also teach you and coach you that how do we, for example, if a person wants to go for swimming, so they'll teach you how to swim. In case of cricket, badminton, same applies there also. You'll have a mentor and coach for the particular sports linked amenities. So there are we'll go to this map at the end. I'll give you a brief about the locations also. So this is Elegance by Denyu. Elegance by Denyu is it's a ready to move in property we have right now in JVC Jumeirah Village Circle, where you have an option of payment plan. For example, ready to move in property, only one ready to move in property we have, that's Elegance, in which 50% payment you have to do upfront, and balance 50% payment you can pay in 50 months, that is 1% per month. Post paying 50%. This is for you're saying for ready to move in property. Yes, ready to move. We have only one project available, and for this we have a payment plan of 1% monthly post handover for 5 years. 5 years. Yes, Excellent. that means 50% he has to pay in maximum 1 month, and the balance 50% he has to pay from next month onwards, 1% per month into 50 months. So technically you're saying 1% we are supposed to pay there, and 0.5% we are going to get it from the guarantee ROI. Yes, guarantee ROI for 6% for 3 years you already have over there. For example, 12% you're getting, 12% you have to pay to the developer in a year. So 6% will manage from the rentals only, because it's a assured guaranteed return which developer is giving you. That is 6% for 3 years. And the client has to do something for that? I mean, he has to look out for the clients for renting. No, or... Guarantee ROI means we are giving you the guarantee ROI for 6%. Their client has to do nothing with that. And the apartment will be occupied. Yes, the apartment will be occupied. Your team efforts. Of course. Okay. Even if the property doesn't stay on rent also, and we will not be able to do find any tenant for you, in that case also we'll still be giving you 6%, whether our apartment gets rented or not. Okay, and this is the transaction happens once every year, or how frequent it happens? Every year, like at the end of the year, you're going to give 6%, right? No, it will happen like we'll pay you in 3 installments. Like it's quarterly, semi-quarterly, half-quarterly. It depends upon the agreement. Maybe it can be 3 months in advance, 6 monthly, or annually. Annually mostly doesn't happen annually. It's either 3 months or 6 months. And this the maintenance amount will not be the part of the client. Yes. So it will be paid by the newborn itself. Yes, Danny will pay it. And where will we receive the amount, right? The rental income in our Dubai account or in India account? Like, no, we can pay you in India account also. Okay, but in that case, it would be taxable, no? Of course, you can open up an NRO account over here, where you can get money from anywhere in the world, and you can get that money deposited in your NRO account, which will not be taxable. Okay, but how will we take that money to India then? See, ma'am, for that, I am not the right person to guide you with this, because for this, we need to connect with the CA, because I am not 100% eligible to speak about it. I can give you a very funny answer over here. Let them travel once in Dubai and have good shopping there.
Yeah, that's right, Sumit ji. But then a lot of clients, they have such kind of questions. Like, I if they are understand, ma'am. earning, right? If they are earning there, they need money in India because they are staying in India, right, ma'am? That's easy. They Smita, already have. Smute, this is like this can be spoken off record. Yeah, Okay. exactly. Yeah, fine. So, any more questions? I'll play the video before we proceed. Please start. This is Dubai's 1% man. From doing things at just 1%, he went from the slums of Mumbai to becoming a billionaire. This is his incredible story. Hi Naz Daily, my name is Rizwan Sajan. I am the founder of Danube Group and this is my story. Rizwan was born and raised in the slums of Mumbai. His family did not own a home. They lived in a poor shack without even a private toilet. It was very, very difficult. We had to share a common toilet which was not easily available because one toilet was shared by I think 30-40 people. One day, his dad won the government home lottery and got a chance to buy a home at a discount. They went from living here to here in a private home with a private toilet and a roof. And this changed his life. At that moment, I understood the value of home. So he made it his life mission to build a home for everyone. He immigrated to the Emirates, and here most of this did not exist in 1991. Dubai was just starting. People needed a home, and homes were expensive. So I came up with an idea. It's very simple. You pay a very small down payment and the remaining amount you pay only 1% per month. That's it. That's it. And that simple 1% idea made him into a billionaire. The 1% when I started, nobody thought it's going to work. But I said, no, this is going to work. I had a plan in my mind what I'm going to do. They said this will never work, but the business actually worked. Thousands of working class people started to buy his homes. They just needed to pay 1% every month. He started building home after home. He built this building, and this building, and this building, and this building. I feel very happy because most of the people to whom I have given home could not actually buy this home if we had not come out with this 1% plan. The guy who used to live in the slums of Mumbai built 15,000 homes and became one of the most successful business people in the country. Is this your car now? Yeah, that's my car. This is your car now? Yeah. It's a nice car. Maybe it's luck. Maybe it's hard work. Maybe it's both. When people say no to me, I don't listen to them. I only listen to my intuition, my heart. And if my heart says go for it, I go for it. The most important thing is don't listen to the people who say no. It is possible to go from the slums of Mumbai to being a billionaire. Thank you, Nasser. You're doing a wonderful job. Thank you, and thank you. This is So, this was all about Danube as a company. Okay, so this was all about Danube as a company, the project, the very important thing that we need to correlate that why why Danube, why Dubai. So, is there any question first related to why Danube and why Dubai? Then we'll move on to the project and the locations. Any questions? I believe बहुत सारे questions in between ही पूछ लिए गए. I don't think so there's any other question. Sumit bhai, any question? Yeah, पेमेंट बहुत प्लान सारे- बाकी डेवलपर्स भी कुछ डेवलपर्स हैं जो 1% का प्लान देते हैं. Recently शुरू करा है after the noob they have all Yes. this because अच्छा successful चल रहा है. So everyone want to utilize that thing. लेकिन अभी भी उनका पेमेंट प्लान जो है वो
पोस्ट हैंडओवर का नहीं है, वो ऑन। अभी आप मैं एग्जांपल लेती हूँ अजीजी का भी प्रोजेक्ट है, 30% आप अभी पे करते हैं, 70% उनको हैंडओवर पे करना है। हमारा वैसा नहीं है, हमारा प्री हैंडओवर पेमेंट प्लान भी है और पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान भी है। तो हमारे जैसा पेमेंट प्लान लोगों ने फॉलो अडेप्ट किया है, बट दैट स्टिल टिल हैंडओवर। पोस्ट हैंडओवर डैन्यूब ही अभी भी देता है और कोई नहीं देता है। और डेट ऑफ कंप्लीशन पे अगर मतलब प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं होता है तो उस केस में क्या रहता है? हमें हमेशा, हमने कोई प्रोजेक्ट ऐसा है ही नहीं जो हमने लीड डिलीवर किया, हमने 6 महीना पहले डिलीवर किया, 6 महीने बाद नहीं किया है, क्योंकि हमारा हमारा टैगलाइन ही है वी लॉन्च वी डिलीवर। सो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि लेट डिलीवर करने का। Usually I don't do it. Usually I don't do it. But like now that we are taking other developers name, तो मैं अपफ्रंटली बोलता हूँ, जैसे ना शोभा ने अपने आप को इस बारे में बहुत बूस्ट किया है कि हमारा 3 महीने पहले हम लोग डिलीवर कर देते हैं। आपने 6 महीने पहले किया है, उसका मतलब वीडियोस नहीं देखे मैंने इतने, जितने मैं लर्न कर रहा था दुबई के बारे में, बहुत ज्यादा डेवलपर्स के बारे में। तो आई हैव सीन दैट दे बूस्ट इट अराउंड देयर। आई मीन लाइक जो मिस्टर मेनन है उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला हुआ है कि वी डिलीवर ऑलमोस्ट ऑल द प्रोजेक्ट बिफोर 3 आपने मंथ्स। शायद आप एक बार डैन्यूब प्रॉपर्टीज का पेज ओपन कीजिए, आप डैन्यूब को, शोभा को छोड़ के डैन्यूब भी देखेंगे देख, तो अरे आपको मैडम जरूर मैंने कितने दिखेगा। देखे रिजवान साहब के वीडियो, तो मैंने कितने देख रखे नहीं हैं, ये हमारे मत बोल क्या। आई एम अ ट्रू नहीं फैन ऑफ नहीं हिम। नहीं नहीं हमारे, अगर आपने देखे होते तो आपको, आप ये क्वेश्चन नहीं बोलते। हमारे बहुत सारे पोस्ट ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे ओके, भी, आप हाँ चेक कर इंस्टा लीजिए। पे है, मैंने देखे 6 महीने पहले डिलीवर किए हुए हैं। पर्ल्स अच्छा बाय ओके। डेन्यू भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने बिफोर टाइम हैंड ओवर किए हैं, वो आप एक बार डेन्यू इंस्टाग्राम पे देखिए। डेन्यू प्रॉपर्टीज वाला ही देखना है ना, हाँ जी डैन्यू प्रॉपर्टीज का ही है। बिकॉज देयर आर सो मेनी। सो शुड आई गो टू So, alldanube.com? Sumit bhai, I'll share the link, चलो ठीक है, ठीक है, website ठीक link. है। I'll ओके take from ओके। Madhya and I'll share. मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट रिलेटेड क्वेश्चंस है, लोग मदिया जी से कनेक्ट कर सकते हैं क्या हम लोग हाँ बाद में? बिल्कुल, मैं आपको नितिश का नंबर शेयर करूंगा, बिकॉज मदिया आप हर मेरा टाइम नंबर, अवेलेबल नहीं होते। मैं नितिश का नंबर जी जी, शेयर आप करूंगा मेरा ऑन द नंबर ग्रुप। शेयर कर दीजिएगा। यू कैन कनेक्ट ऑन मैम तो ऑन। बिजी रहती हैं, तो प्लीज शेयर माय नंबर, आप मुझसे कनेक्ट करना, जो आप भी आपको चैट में डाल दीजिए ना। मैं अभी डाल देता हूँ, मैं अभी डाल देता अभी डाल दें जी। और सुमित जी को तो स्पेशल कर देना, सर से बात होती हूँ। सुमित रहेगी। भाई से तो मिलते रहो। सुमित भाई इज सुमित ओनली जी, आई फोकसिंग एम ऑन दुबई। विजिटिंग योर आपका ऑफिस भी मे बी। मेरा नंबर दे नंबर ले दीजिए लेना आप, सुमित यू जी। कैन कॉल मी एनी टाइम, 24 दिया into हुआ है, 7। दिया हुआ है, आपको नितिश भी भाई, आई दिया एम हुआ है, विजिटिंग हमको यू भी दिस दिया हुआ है। दिस वीक इटसेल्फ। आई एम विजिटिंग यू। आई नीड टू हैव मोर क्लैरिफिकेशंस। और सुमित भाई इज ओनली फोकसिंग ऑन दुबई, इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं, बिकॉज वो और वेरी कुछ नहीं गुड, सुमित बेस जी, है, गुड, खाली आपका दुबई गुड, कर गुड। रहे हैं। नंबर मुझे दे दीजिए सुमित जी। हेलो। हेलो अच्छा, अभी सुमित। किसी किसी का और सवाल कुछ पूछना है तो आप एक बार। So I'll hand over the project details to Nitish. Nitish Done. will Nitish will give you information about the projects and the prices. He's giving you such a weird look, जैसे लगा बहुत सवालों की मुझार आने वाली है। So एक्चुअली मैं, मेरे क्लाइंट बैठे हैं ना साथ में, इसलिए मैं जी। कोई बात नहीं है। तो नितिश आपको एक एक बिफोर यू लीव, एक मेरे को रिक्वेस्ट है, कैन यू शेयर द दान्यूब प्रॉपर्टी मैप जो करंट हो? आई विल अभी शेयर यू, मैं आई ग्रुप विल में भेज शेयर। दी। करंट वाले देना अपना एक बारी। नितिश विल डन सेंड डन। और आई सेंड। ओके आप नितिश। ग्रुप पे ही डाल देना, कोई भी आप लोग ग्रुप पे डाल देना तो हाँ ग्रुप पे WhatsApp डाल पे देना, दैट विल फाइन। यस। मैंने डाल दिया, आप चेक कर सकते हैं। तो नितिश प्लीज गो अहेड विद दी, अभी आप बेस क्या दिख रहा है? मैं, आप छोड़ दीजिए मैम, मैं कर लूंगा। आप 5 मिनट के लिए मैप समझा दीजिए, आई विल टेक ओवर। अच्छा मैं मैप समझा देती हूँ पहले आपको। यार वे आप एक बार मैंने ग्रुप पे मैप है वो आप पेस्ट कर, ये कर दिया, सेंड कर दिया। आप एक बार इसमें शेयर कर देंगे मैप, मैं कर रहा हूँ। या मैं करूँ?
तो मैं शेयर कर रहा हूँ, स्टॉप करिए, आप स्क्रीन बंद करिए मध्य। एक मिनट। इसमें स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो नहीं मैं देख रही, मैं मेरे को कर्सर चलाना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ से ओपन किया। ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। ओके, मैं ये देख के आप फिर प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं वहां से अपना कंट्रोल। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपको ब्लू लाइन ऊपर दिख रहा है, ये आपका शेख जायद रोड है, जो दुबई का वन ऑफ द टॉप मोस्ट डेवलप्ड रोड है, जहां पे पूरा बुर्ज खलीफा, बिजनेस बे, बुर्ज अल अरब, जबल अली, पाम जुमेरा, ये सब, और सबसे महंगा रोड आपका ये है, जो आपको यहाँ पे ये ब्लू ऊपर वाला डार्क ब्लू लाइन दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, ये वाला जो आपको एट द बॉटम जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है डार्क वाली, ये आपकी दो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं, या हम जिसे लाइफ लाइन रोड्स ऑफ दुबई बोलते हैं, जिसमें शेख जायद रोड और शेख मोहम्मद बिन जायद रोड दिखेगा। अब टुवर्ड्स यहाँ की ओर अगर आप जाएं तो आप अबू धाबी पहुंचेंगे, यहाँ की ओर अगर आप जाएं तो शारजा पहुंचेंगे, और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पे शारजा शुरू होता है, वहां से आपको दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है, और दूसरे साइड पे आपको जहां से अबू धाबी जाते हैं उससे कम से कम 100 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पहले, अबू धाबी से 100 किलोमीटर्स पहले आपको अल मखतूम एयरपोर्ट दिखेगा, जो ऑलमोस्ट दुबई के बॉर्डर के मतलब 20-30 किलोमीटर के बाद दुबई का बॉर्डर खत्म होके अबू धाबी शुरू होता है। ठीक है, इन दो रोड्स पे ही पूरा दुबई का सर्कल है, पूरा दुबई इतने में ही है, घूमता है, शेख जायद रोड और शेख मोहम्मद बिन जायद रोड। अब शेख जायद रोड और शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे टोल टैक्सेस लगते हैं, जो दुबई में इतने सारे लोग, 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो दुबई में बाहर फॉरेन मतलब जो जॉब करते हैं, उनको इन्हीं रोड से जाना होता है, तो हर दिन का वो टोल टैक्स जिसे हम दुबई में सालिक बोलते हैं, वो पे नहीं करते हैं, इसलिए दे टेक अ रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर, जो इन बिटवीन आपको दिख रहा है, इस रोड को हम अलखेल बोलते हैं, तो इसमें कोई टोल टैक्सेस नहीं लगते हैं। सो ये बेसिकली 3 रोड्स पे एंटायर दुबई घूमता है, और ये वाला पर्टिकुलर रोड जो है, ये शेख जायद रोड से भी जुड़ता है और शेख मोहम्मद बिन जायद रोड से भी आपका ये कनेक्ट करता है। नाउ अगर हम बात करें सेंटर, यहाँ ये शेख जायद रोड के ऊपर जितना भी आपको ये दिख रहा है, ये अरेबियन सी है, इसके ऊपर ऊपर जाएंगे तो ये सब अरेबियन सी दिखेगा, और इस शेख मोहम्मद बिन जायद रोड के नीचे नीचे जाओगे तो आपको डेजर्ट दिखेगा। नाउ ये शेख जायद रोड जो है, अगर आप इन पर्टिकुलर एरियाज की बात करें, ये सबसे मदिया, बट ये एमिरेट और एमिरेट ये- रोड इससे भी नीचे है, वो हाँ, तो यहाँ इस एरिया में जहाँ पे अभी आपका कर्जा चल रहा है, यहाँ पे आजकल काफी सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। हाँ, लेकिन वो बहुत दूर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट, अगर किसी बंदे को खुद रहना होगा दुबई में, हाँ, वो एमिरेट्स रोड पे बहुत सस्ती प्रॉपर्टीज मिलती है, तो वो रहने के लिए खुद के ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रेंटल्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, तो आप खुद सोचिए, अगर मेरा ऑफिस लाजपत नगर में है, तो मैं 2 घंटा दूर प्रॉपर्टी क्यों लूंगी रेंट पे आने जाने के लिए? तो वो वाली नहीं, प्रॉपर्टी, गिवन द सिचुएशन की जैसे अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्टिव हो जाएगा, दिस विल बी आई थिंक एशियाज बिगेस्ट, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का ऑटोमेटिकली इस प्रॉपर्टी के आसपास, जैसे एयरपोर्ट के आसपास यूजुअली डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, हमने ये ट्रेंड्स देखे हैं, तो उसके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आप खुद सोचिए, एयरपोर्ट आएगा, एयरपोर्ट आने से ऐसा क्या है एमिरेट्स रोड पे, ऐसी कौन सी अट्रैक्शन दुबई ने बनाई है वहां पे, कि वो वाला रोड जो है, वो डेजर्ट बिल्कुल दुबई जहां एंड होता है ना, उसके आंसर बाद लाइज इन द desert- सेम मैप। अगर आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखेंगे तो दैट इज द मोस्ट प्राइम एरिया। Pardon? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो एरिया है आज की तारीख में दुबई में, दैट्स मोस्ट प्राइम एरिया, राइट? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये वाला? हाँ, तो आज की नहीं, तारीख में अगर हम देखेंगे तो गिवन द, इट्स नॉट अ प्राइम एरिया। प्राइम एरियाज आपके बिजनेस बे हुआ, डाउनटाउन हुआ, मेरीटाइम सिटी मैं तो हुआ। उतना ही डिस्टेंस मान के चल रहा हूँ अंदर दुबई के, एक वन 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 दो, चलिए छोड़िए, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं नहीं आपको एक्सप्लेन सुमित भाई हाँ। व्हाट वी कैन डू दैट कि अभी जब नेक्स्ट मीटिंग है, आप विजिट करने वाले हो, आई बिलीव मदिया एंड नीतीश हाँ, दोनों ही वो, रहते हैं वहां पर, सो वी कैन सेट ऑन वन ऑन वन एंड वी कैन डिस्कस, हाँ, ठीक है, और ठीक बिकॉज है। अभी अगर बहुत सारे लोग भी हैं कॉल पे। आप मेन एरियाज की बात करते हैं, डिपेंड करता है
कि आप किस वे में मेन एरिया कह रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास किस माइंडसेट से आप कह रहे हैं, तो डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर। अगर आप दुबई की बात करें तो कई कस्टमर कहते हैं मुझे तो बुर्ज खलीफा चाहिए, मोस्ट ऑफ I टाइम know. कहता है मुझे तो सी दिखना चाहिए। तो Correct. ये डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट से कह रहे हैं कि कौन सा लोकेशन प्राइम है। प्राइम तो पूरा दुबई है सर। बिल्कुल, पूरा ये हुई correct. सेल्समैन वाला जवाब। हम्म। डन नितिश भाई भाई। यही तो बात है, असली सेल्समैन ने तो भाई वाली जवाब दे दिया। धन्य हाँ। तो उस दिन बोलो जिस दिन चेक उठवाएंगे मेरा जूम मीटिंग से। ठीक अब है, हम जो बेचेंगे भाई, हम जो बेचेंगे हमारे लिए तो वही करेक्ट, प्राइम है ना, बिल्कुल करेक्ट वर्किंग बात है। प्राइम। सो ये जो मैप है ये बेसिकली जो दुबई में दन्यूब की प्रॉपर्टीज है उनके सराउंडिंग्स में जो नंबरिंग्स आप मेंशन देख रहे हो ना, ये सारे दन्यूब की प्रॉपर्टीज है, उसी की सराउंडिंग की डिटेलिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। और इसके नंबरिंग्स के डिटेल कहाँ मिल रहे हैं? इंडेक्सिंग यहाँ पे आपको हाँ ठीक है, ओके। परफेक्ट परफेक्ट। तो आपका जो ये रोड आपको दिख रहा है, इधर हमारा अल फुरजान से लेके जेएलटी जुमेरा लेक टावर्स, ये पर्टिकुलर एरिया जो अगर आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे आपका डैन्यू प्रॉपर्टीज का हेड ऑफिस भी है, अलमनारा स्ट्रीट पे, बिजनेस बे डाउनटाउन। ये पैच ऑफ लैंड जो ओशंस पे गवर्नमेंट ने रिसेंटली डेवलप किया है 1 साल पहले, और यहाँ पे अभी 20 प्लॉट्स हैं। 20 में से 3 प्लॉट्स डैन्यूब के ही है। ये कॉर्नर 25 नंबर जो दिख रहा है, ओशंस 1, 2 और 3 ऑलरेडी डेवलप्ड है, ये डैन्यूब का है। ये यहाँ पे और मदिया, दिस इज हाँ द जी, सेम दुबई आइलैंड के नाम से जो नहीं डेवलप हो रहा वर्ल्ड है? आइलैंड ये हुआ। नहीं, वो तो वर्ल्ड आइलैंड है। एक दुबई आइलैंड के नाम से भी एक स्पेस बन है, ये मैरीटाइम वही है या कुछ और है वो? नहीं मैरीटाइम सिटी अलग है। अच्छा, ओके। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपको ये आपको मैरीटाइम सिटी मिलेगा। अब आपका यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ दुबई की अगर आप बात करें, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर कोई बंदा आपसे ये पूछेगा कि बिजनेस बे कितना दूर है, बुर्ज खलीफा कितना दूर है, या मोस्ट प्रोबेबली मेरा कहीं भी प्रोजेक्ट हो तो एयरपोर्ट कितना दूर है वहां से। लेकिन एयरपोर्ट कितना दूर है मोस्टली वो लोग बोलते हैं जिनको मतलब जो दुबई के लिए लेमन अभी हैं, जिनको दुबई के बारे में पता नहीं, वो मोस्टली यही बोलते हैं कि एयरपोर्ट कितना दूर है या बुर्ज खलीफा कितना दूर है। सो जो बेसिकली इन्वेस्टर्स हैं वो लोकेशंस में आपकी प्रॉपर्टी देखते हैं जहां उनको पता है स्कोप ऑफ रेंटिंग अपार्टमेंट और मदिया ने ऑक्यूपेंसी फेवर रिटर्न कर दिया मेरा। हाँ मैंने कहा अभी फेवर रिटर्न किया आपने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नहीं नथिंग लाइक दैट। सो वो जिन लोगों को आइडिया होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे हमारी जैसे बिजनेस वे है, वहां पे जितनी भी बड़ी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब के हेड ऑफिसेस इन्हीं एरियाज में है, तो लोग प्रेफर करेंगे ज्यादातर इर्द गिर्द इस प्रॉपर्टीज के रहना। या हमारा जेएलटी हो गया, जिनको जो कुछ होटल्स वगैरह है उनमें काम करते हैं तो वो जेएलटी एरिया प्रेफर करते हैं नजदीक में, या टूरिस्ट डेस्टिनेशन जेएलटी एरिया है। अल फुरजान में सबसे ज्यादा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस आपको अल फुरजान में मिलते हैं। मॉल्स, डिस्कवरी गार्डन, इब्न बतूता मॉल, ये सब आपको मिलता है, और इधर में मेट्रो भी चलती है। तो यहाँ पे आपका जैसे सेंटर ऑफ दुबई है अरजान और जेवीसी, जुमेरा विलेज सर्कल, हमारे जितने मैक्सिमम प्रोजेक्ट जेवीसी में आ रहे हैं, जुमेरा विलेज सर्कल जो सेंटर है दुबई का, दुबई लैंड का। तो यहाँ से 20 मिनट्स आपको अल मखतूम एयरपोर्ट पे भी लगेगा, और 20 मिनट्स आपको मदिया यहाँ पे यहाँ एक से चीज जेबीसी के बारे में मुझे पूछना था। जेबीसी को यूजुअली इट इज कंसिडर्ड एज अ लो लाइंग एरिया ना, मतलब नहीं देखिए, रोड के इस पार जाएंगे ना तो सारे एरियाज अच्छे हैं, रोड की इस पार जाएंगे तो हल्का सा लोग बोलते हैं कि मतलब लो लोग ये प्रोफाइल है। बोलते हैं कि कम, ये लो प्रोफाइल नहीं है, मतलब डेवलपमेंट हो रही है। हो दुबई रही अब है, अच्छा कुछ ठीक। पैच ऑफ लैंड है, आप ये सोच के चलिए दुबई में कुछ पैच ऑफ लैंड बचा होगा, कुछ टाइम बाद वो भी नहीं बचेगा। तो उस जैसे केस में कैसे एक चीज है, जैसे जेबीसी के हम लोग फोटोग्राफ्स वगैरह देखते हैं या वो देखते हैं तो उसमें वो सारा का सारा मतलब हाई राइज नहीं दिखता वहां पे। क्या इज इट राइट कि वहां पे हाई राइज कम है जेबीसी में? हाँ जेवीसी वगैरह में हाई राइज कम है, वहां पे इस एरिया में जेवीसी अरजान में हाई राइज नहीं है, मतलब मैक्सिमम लेके चलिए 50। हमारी ही टॉलेस्ट टावर है 45 फ्लोर्स का वहां पर। ओके। फिर आपका ज्यादा डैन्यूब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 101 फ्लोर बिजनेस बे में है हमारा, 101 फ्लोर का टावर बेस 101 में। तो
अभी मैं आपको प्रोजेक्ट की डिटेल देंगे। ये इंटरनेशनल सिटी है ना, यहाँ पे ज्यादातर मिक्स्ड क्लास मिलेगा आपको, लेबर क्लास, और ये इसकी बात आप कर रहे होंगे, लेबर ये लो क्लास जो आपने बोला, वो मे बी आपको इधर थोड़ा सा वैसे लोग मिलेंगे जो मतलब सेल्समैन या ब्लू कॉलर जैसा आप बोलेंगे, तो मिक्स्ड कैटेगरी है यहाँ पे। मिडिल क्लास भी दिखेंगे आपको, अपर मिडिल क्लास भी दिखेंगे, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे काइंड के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। ओके। हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट, अब नीतीश आपको इन्वेंटरी शेयर करेंगे। अभी नीतीश विल गो विद द डिफरेंट प्रोजेक्ट का जो हमारा अभी लेके चलिए। बेस में यूनिट्स अवेलेबल है, डायमंड्स में यूनिट अवेलेबल है, और हमारे पास ओशंस में यूनिट्स अवेलेबल है। इन 3 की ट्रेनिंग आपको अभी नीतीश देंगे। आई नीड टू गो फॉर अनदर मीटिंग, आई हैव 1-1:30 बजे मेरी और एक मीटिंग है, तो मैं उसमें जाकर नीतीश अब आपको उसकी डिटेल्स देंगे। बाय एनी चांस अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, नीतीश इज द राइट पर्सन, ही विल हेल्प यू विद ऑल द क्वेश्चन एंड क्वेरीज। स्टिल अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो, यू कैन ड्रॉप डाउन अ मैसेज ऑन आवर ग्रुप एंड आई डू माय बेस्ट टू आंसर यू योर ऑल क्वेश्चन एंड क्वेरीज। एंड उसके बगैर भी हम लोग हैं, नीतीश विल हेल्प यू इन closing all the deals, whatsoever he can do for you people to close the deals will be available for all of you. So thank you so much, I'll take a leave. Thank you And Maria. over to you, Nitish. थैंक यू। नीतीश I भाई आ think जाओ। मेरे को आप होस्ट बनाना पड़ेगा, मैं नीतीश को होस्ट बनाया था। नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, आप एग्जिट कर लो, कोई इशू नहीं है, मैंने आपको को होस्ट बनाया हुआ है, कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है, डन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नहीं, हार्ड कॉपी में चाहिए हो तो यहाँ है नहीं कोई? हाँ नहीं यार, ये कि अपने पास लिखिए। नहीं, यहाँ आसपास कोई वेंडर पे नहीं? तो नीतीश भाई। जी भाई, तो अब फोकस जो अभी हमारा फोकस प्रोजेक्ट है वो है हमारा डायमंड्स बाय डैन्यूब एंड बेस 101। ठीक है, मैं एक बार आपसे शेयर करता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट है हमारा डायमंड्स बाय डैन्यूब, जो जेएलटी में लोकेशन है इसकी, बहुत वन ऑफ प्राइम लोकेशन में से एक आता है। अभी हमारा फोकस प्रोजेक्ट यही रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट है हमारा डायमंड्स बाय डैन्यूब। तो बेसिकली इसमें 3 बेसमेंट ग्राउंड्स में शॉप अवेलेबल है जो भी डेली यूजेस के लिए होती है। ग्राउंड प्लस 11th फ्लोर तक आपका पोडियम है, इसमें पूरा पार्किंग स्पेस है। सो 12th फ्लोर इज द फर्स्ट रेजिडेंशियल फ्लोर, मतलब आपका 12th फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट फ्लोर से लेकर 60 फ्लोर तक रेजिडेंशियल है, जिसमें स्टूडियो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK है। 61 एंड 62 में आपका पूरा एमिनिटीज है, जो भी हमारी 45 प्लस एमिनिटीज है वो 61, 62 एंड 12 फ्लोर पे है। ये इस तरीके का लेआउट है। जो आप लिफ्ट एरिया देख रहे हैं, डायमंड वाली शेप देख रहे हैं, ये हमारा पूरा लिफ्ट एरिया है। टोटल 12 लिफ्ट है इसमें। 2 टावर है A एंड B, और दोनों का जो हाइट है ग्राउंड प्लस 62 है। ठीक है, ये अभी हमारा फोकस प्रोजेक्ट रहेगा। अभी हमारा एक और लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट मंथ, उसकी मैं डिटेल आपसे शेयर करूंगा, बट उसका टिकट साइज अप्रोक्स 6 to 7 लाख दिरहम रहेगा। तो वो एक अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ आ रही है। ये लोकेशन है। तो अगर आप इसका एक व्यू देखोगे तो पूरा एक व्यू आपका सी फेसिंग है और एक जुमेरा आइलैंड फेसिंग है। दोनों व्यू इसके बहुत प्राइम व्यू है। मतलब जुमेरा आइलैंड अगर आप पूरा देखेंगे तो पूरा ग्रीनरी और आपको लेक मिलेगी इसमें। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं इससे, तो ये DMCC मेट्रो स्टेशन विद इन 2 मिनट्स, दुबई मॉल 3 मिनट्स, जुमेरा आइलैंड 3 मिनट्स। तो जितने भी दुबई के मेन एरियाज हैं, ये आपका 2 मिनट से लेकर और 70 मिनट में आप पूरा डिस्टेंस कवर कर लेंगे। चाहे बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, जो भी बुर्ज अरब, दुबई आई, ये जितने भी मेजर लोकेशंस हैं, ये आपका विद इन 5 मिनट टू 18 to 20 मिनट्स है। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है DMCC, जो 7 मिनट। दुबई आई को क्या बोलते हैं? एन दुबई? यस यस। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट?
दुबई, हम दुबई आए, AIN को AIN आई बोल रहे हैं क्या ये? जैसे दुबई, लंदन आई है। हाँ जैसे लंदन आई है वैसे दुबई आई है। अच्छा ठीक। जी जी ठीक है। सो अभी ये तो समझा ही दिया वाई दुबई, वो इस तरीके से इसका लेआउट है। ये अपना लॉबी एरिया है। तो जो भी आप हमारा ब्रोशर ये देख रहे हैं ये सारा रेरा अप्रूव्ड है। तो जिस तरीके का इंटीरियर या आप कलर देख रहे हैं ये एज इट इज रहता है। ये हमारा लॉबी है थोड़ा सा डायमंड शेप में। ये हमारा लिफ्ट एरिया है। ये हमारा स्टूडियो का है, जिस तरीके से स्टूडियो का। तो जो भी आप ये फर्नीचर देख रहे हैं ऐसे ही हम क्लाइंट को देते हैं। फुल्ली फर्निश्ड ऑप्शन मिलता है क्लाइंट को, ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी इंटीरियर या इंटरनल आपको कोई भी काम नहीं कराना है, अभी फुल्ली फर्निश्ड का हम कस्टमर को ऑप्शन दे रहे हैं। नीतीश भाई, ये ऑप्शन का क्या मतलब हुआ? एक्स्ट्रा पेमेंट होगा? सॉरी, ऑप्शन मींस डू क्लाइंट हैज टू पे एक्स्ट्रा? नहीं, ये फुल्ली फर्निश्ड है। हम क्लाइंट को अभी अगर वो हमसे बुकिंग कराता है तो हम उसको पूरा फुल्ली फर्निश्ड ऑप्शन दे रहे हैं। किसी भी तरीके का ऑप्शन अलग बोल से के ऑफर बोल लो कि भैया फुल्ली फर्निश्ड ऑफर है आपके लिए कि फुल्ली फर्निश्ड मिले। जी अभी बोल सकते हैं आप कि आप अगर कोई भी फ्लैट बुक कराते हैं रिमैक्स के थ्रू तो हम आपको फुल्ली फर्निश्ड का ऑप्शन दिलवाएंगे, जिसमें आपको 1 रुपए का भी इंटीरियर में पैसा नहीं लगाना है। ईच एंड एवरीथिंग, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, बेड, कर्टन रॉड्स, ईच फुल्ली लोडेड किचन, आपका डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ईच एंड एवरीथिंग आपको हम फुल्ली फर्निश्ड ऑप्शन देंगे। ओके। But is this a limited time offer कि ये this is for अभी ये लॉन्चिंग स्टेज पे है। तो अभी फुल्ली फर्निश्ड ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही हम इसको ऑफिशियली लॉन्च कर देंगे फिर इसका फुल्ली फर्निश्ड ऑप्शन एज पर अप्रूवल होगा। अच्छा, and when is the launch going to happen? ये विद इन 10 to 15 days। 10 to 15 days. यस। Okay, thank you. ठीक है। तो ये हमारा लिविंग एरिया हो गया। जितना भी आप ये सोफा एंड ये टेबल्स देख रहे हैं ये सब आपको फुल्ली फर्निश्ड मिलेगा। ये लग्जरी बेडरूम हो गया आपका। आप किचन देखिए डाइनिंग टेबल के साथ फुल्ली लोडेड। ठीक है। सो ये आपका वॉशरूम हो गया, फुल्ली लोडेड वॉशरूम आपका, ईच एंड एवरीथिंग, टैप, सिंक, ईच एंड एवरीथिंग, बाथ टब। ये सब हमारा खुद के फोटोग्राफ्स हैं, ये कौन से उसके हैं? मिलानो, ये खुद का ब्रांड है एक्चुअली। नहीं, वो तो नहीं, 2 BHK 3 BHK कौन सा उसका है ये तो मैं जस्ट ब्रोशर में आपको दिखा रहा हूँ। 2 अच्छा। BHK हो 3 BHK हो रहेगा सेम। बाथरूम 2 BHK में 3 रहेंगे लेकिन रहेगा सेम। किचन रहेगा सेम, बेडरूम रहेगा सेम। अब वो डिपेंड करता है 1 BHK में 1 बेडरूम रहेगा मतलब, और ऐसे 2 बेडरूम मिलेंगे आपको 2 बेडरूम में, बस ये डिफरेंस रहेगा। सभी के इंटीरियर सेम दिखेंगे। क्या कह रहे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्या कह रहे हैं मैम? एक बार दोबारा बोलिए। मैंने नीतीश जी, आप जो बोल रहे हैं कि सारी चीजें यानी फुल्ली फर्निश्ड, तो सभी के इंटीरियर सेम रहेंगे ना? कलर कॉम्बिनेशन, सोफा जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, किचन ट्रॉलीज। हाँ सबके सेम रहेंगे, सबके सेम रहेंगे। साइजेस बदलेंगे मैम एज पर दी साइजेस, एज पर दी रूम sizes साइजेस। बदलेंगे बाकी चीजें तो और रिमेन सेम। नहीं भाई, लग्जरी भी तो चेंज होएगी, साथ में लग्जरी भी चेंज होएगी। अगर एज पर कस्टमर चॉइस आप इंटरनल कुछ सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं होगी। बाकी अगर आप इंटरनल कोई कलर चेंज कराना चाहते हैं, बेड की सीट चेंज कराना चाहते हैं, डिपेंड ऑन कस्टमर। ओके, हेलो, ओके ओके। डन। तो हमारे आप जो भी प्रोजेक्ट देखेंगे, हमारा सबसे प्लस पॉइंट है कि हम एमिनिटीज में बहुत फोकस करते हैं। तो हम 45 एमिनिटीज देते हैं। मैं एमिनिटीज कुछ आपको दिखा देता हूँ। लाइक जिमिंग, इसमें पूरा जिम एरिया रहेगा। ये जो बीइंग स्ट्रॉन्ग जो सलमान खान का है वो इक्विपमेंट रहेंगे इसमें, बीइंग स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसके ब्रांड एम्बेसडर हमने सलमान खान बनाए हैं। और रेन शावर रहेगा। ये आप पूरा जुमेरा आइलैंड का व्यू देख रहे हैं। एक व्यू हमारा पूरा जुमेरा आइलैंड का दिख रहा है आपको बैक में, रेन शावर में। हमारा रूफ टॉप में पूल बार रहेगा। ठीक है। हमारा स्पा, जुम्बा विद इंस्ट्रक्टर, कबाना सिटिंग, ये सारा फुल्ली मतलब आपको एमिनिटीज मिलेगी जो आपका मेंटेनेंस जाएगा। इसके लिए कोई भी अदर से कॉस्ट आपको बेयर नहीं करी। इंडोर किड्स एरिया, आउटडोर किड्स एरिया, योगा डेक, ये सारी एमिनिटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ये आपके मेंटेनेंस में कवर होगी। तो आप अगर एमिनिटीज देखें तो 45 प्लस एमिनिटीज हैं। इंफिनिटी पूल, जकूजी, किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट पिच, टेम्पलो लाइन, किड्स प्ले एरिया, बारबेक्यू एरिया, ये सारा आपको एमिनिटीज
सिर्फ आपका मेंटेनेंस है। डॉक्टर ऑन कॉल बहुत मेजर एमिनिटीज में से एक है, जिसमें 24/7 आपकी रेजिडेंशियल के लिए पूरी एक टीम डॉक्टर की डेडिकेटेड रहती है। तो आपका ये भी मेंटेनेंस में कवर होगा। मेल प्रेयर रूम, फीमेल प्रेयर रूम, लाइब्रेरी, एंड आपकी अगर आ जाते हैं तो जकूजी, रेन शावर। नीतीश भाई, जो इसमें चिल्लर की कॉस्ट होती है वो इंक्लूडेड होती है क्या? चिल्लर फ्री जो आपका, अगर आप वो आपका इसमें आएगा सर, जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसमें होगा। चिल्लर फ्री, चिल्लर लगा के कॉस्ट रहती है, लेकिन अगर आप जो उसको जो यूज करेंगे उसको आपका भरना पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी। कैपिटल कॉस्ट इंक्लूडेड आप ये कह रहे हैं ना? हाँ, कैपिटल कॉस्ट। कोई रेंटल तो नहीं है उसका? कोई रेंटल तो नहीं है? नहीं, उसका कुछ नहीं है, उसकी कोई अलग से कॉस्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है। सो इस पे अभी हमारा फोकस रहेगा। इसका प्रोजेक्ट का नाम है डायमंड्स बाय डेन्यू। जब तक हमारा नया प्रोजेक्ट नहीं आता, इसमें अभी हमारे पास स्टूडियो 1 BHK 2 BHK अवेलेबल है। मैं एक बार इसका लेआउट आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी एक्चुअल लोकेशन है, एक बार मैं लोकेशन भी आपको एक्चुअल दिखा दूं। ये एक्चुअल लोकेशन है, ये हमारा प्लॉट है। ये रहा आपका शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, जो आप ये रेड रोड देख रहे हैं। ये जो आप रोड देख रहे हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, ये आपका DMCC मेट्रो स्टेशन आ गया, बिल्कुल विद इन 7 मिनट to 8 मिनट डिस्टेंस है। ये रहा आपका मेट्रो स्टेशन। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा, ये शेख जायद रोड है। देयर आर 2 लाइब्रेरी इन दुबई, वन ऑफ मोस्ट क्राउडेड रोड जिसे बोलते हैं, बहुत यूजेबल रोड है ये, इसको बोलते हैं शेख जायद रोड। ये रहा आपका मेट्रो स्टेशन। तो शेख जायद रोड हो गया हमारा, और ये आपका पाम जुमेरा हो गया। जो भी इसके 50 फ्लोर से ऊपर के हैं, 45 फ्लोर से ऊपर, उनको सी व्यू आएगा। ये आपका दुबई मरीना हो गया, और ये JBR बीच हो गया। ठीक है, एक्चुअल प्लॉट ये रहा, ये प्लॉट है हमारा, कॉर्नर प्लॉट है। नितेश भाई, ये क्या ऊपर के फ्लोर्स में इन्वेंट्री अभी भी है, अगर किसी को सी व्यू चाहिए हो? कुछ इन्वेंट्रीज है, डिपेंड ऑन स्टूडियो और 1 BHK। यस। और इसके दोनों भी बहुत प्राइम है। अब अगर आप इसका दूसरा व्यू देखो तो भाई, ये पूरा जुमेरा आइलैंड है, बहुत प्यारा व्यू है। ये पूरा जुमेरा आइलैंड है, मैं आपको लाइव गूगल मैप पे दिखा रहा हूँ। बहुत प्यारा व्यू है, इसलिए डिमांडिंग रहा है प्रोजेक्ट। पूरा विला कम्युनिटी है, मतलब एक विला 80 CR से ऊपर है एज पर इंडियन करेंसी। तो ये पूरा विला कम्युनिटी है, तो इसमें आपको ग्रीनरी एंड लेक दोनों व्यू आएगा। ठीक है, मैं आपको एक्चुअल इसका एक बार एक लेआउट भी दिखाता हूँ, किस तरीके से व्यू आ रहा है, जिसमें हमारे रिजवान सर ने पूरा इसको दिखाया है। एक बगल के इस तरीके से व्यू आएगा इसके, एक बार देखिए। इसमें आवाज थोड़ा सा कम आएगी आपको, एक बार सिर्फ आप व्यू देखिएगा। ये देखा हुआ है शायद, उसमें है ना जी। तो एक व्यू ये है, देखिए पूरा जुमेरा आइलैंड का, पूरा जुमेरा आइलैंड का व्यू। एंड सेकंड व्यू पूरा सी एंड सिटी व्यू। तो ये व्यू है इसका टोटल। ठीक है, ये इसका पेमेंट प्लान वही है जो हमने अभी समझाया था। सिटी व्यू का कॉस्टिंग अलग आएगा और इसका अलग आएगा क्या कॉस्टिंग? मतलब डिपेंड ऑन फ्लोर, डिपेंड ऑन व्यू, इस पे डिपेंड करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ एज ए एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप 1.1 मिलियन का स्टूडियो ले रहे हैं इसके 12th और 13th फ्लोर पे, और वही अगर आपको स्टूडियो 55 फ्लोर पे लेना है, या 55 फ्लोर पे थोड़ी आप स्टूडियो थोड़ी दे रहे होगे। 55 पे तो आप वो दे रहे होगे 4 BHK। नहीं, 55 फ्लोर तक स्टूडियो है इसमें। अच्छा जी, 62 फ्लोर की बिल्डिंग है, 60th फ्लोर तक रेजिडेंशियल है, तो 55 फ्लोर तक स्टूडियो है इसमें। बट अवेलेबल नहीं है, वो बात अलग है। वो पहले ही जिस दिन सॉफ्ट लॉन्च था तो उसी दिन बिक गया था, बट अवेलेबल नहीं है। बट 55 फ्लोर तक है। अच्छा, ठीक है, तो मैं आपका इसका थोड़ा सा एक फ्लोर प्लान दिखाता हूँ, आपको आइडिया भी लग जाएगा। भाई तो एक बात बताइए, एक फ्लोर पे 4 BHK भी हो सकता है, स्टूडियो भी हो सकता है, 3 BHK भी हो सकता है, इज इट राइट? जी, मैं अभी आपको लेआउट दिखा रहा हूँ सर, क्लियर हो जाएगा आपको, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। ये रहा लेआउट।
तो बेसिकली आप ये देखिए 12th फ्लोर इज द फर्स्ट रेजिडेंशियल फ्लोर। आप देखेंगे इसमें अपार्टमेंट कम है। अब हम आ जाते हैं 30th to 31st। तो आप जितने भी ये देख रहे हैं, ये अपना स्टूडियो, ये लेआउट है। स्टूडियो का कलर 1 बेडरूम, 2 बेडरूम ब्लू, 3 बेडरूम ग्रीन। अब ये कलर है। अब ये पूरा स्टूडियो जो आप देख रहे हैं 7 to 3, 10 to 14, ये स्टूडियो है। तो 30th to 31st फ्लोर स्टूडियो ज्यादा है। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं 33 to 42 फ्लोर, उसमें 2 BHK है, 1 BHK है, स्टूडियो है। अब अगर हम 56 से 59 फ्लोर तक आएंगे तो हम इसमें देखेंगे, हमें इसमें 4 BHK ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, और 2 BHK इसमें हमें शो हो रहा है। ये रहा 56, 59 और 60th फ्लोर पे हमारे पास 3 and 4 BHK है। इस तरीके से लेआउट है इसका। ओके। तो इसमें हमारे अगर 60th फ्लोर पे देखें तो 11 फ्लैट है। 56 to 59 देखें तो 12 फ्लोर है। और यही अगर हम 33 to 42 देखें तो 18 अपार्टमेंट्स हैं। और ये अगर हम 13 to 31st फ्लोर देखें तो 24 अपार्टमेंट्स हैं। तो डिपेंड ऑन फ्लोर टू फ्लोर, ठीक है। ये हमारा लेआउट है। तो बेसिकली हमारे पास स्टूडियो है, कारपेट एरिया 419, ये हमारा स्टूडियो है। एंटर करते ही आप किचन एरिया देखेंगे, पेंट्री एरिया। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपको वॉशरूम मिलेगा, लेफ्ट में वार्डरोब मिलेगी। फिर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो छोटा सा ये सोफा लिविंग एरिया, और ये आपका बेडरूम आ गया, और ये बालकनी है, ठीक है। ये हमारा स्टूडियो विद पूल। तो सेम लेआउट है, बस इसमें बालकनी का साइज बड़ा है और एक प्लंज पूल दिया हुआ है। तो ये प्राइवेट पूल रहेगा आपका इस तरीके से। सेम 1 BHK, सिंपल 1 BHK। आपकी एंट्री, आपने जैसी एंट्री करी, किचन एरिया हो गया पूरा, राइट में वॉशरूम्स हो गए। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ऑफिस स्पेस मिलेगा। ऑफिस स्पेस की बहुत डिमांड है वहां पे। फिर आपका लिविंग एरिया एंड ड्राइंग रूम आ गया। थोड़ा सा राइट लेंगे तो ये पूरा बेडरूम आ गया। ये आपकी बालकनी का साइज हो गया। इसका कारपेट एरिया है 753 कारपेट एरिया। ये विद पूल है, सेम है लेकिन विद पूल है। इसका 751 है। तो हमारे पास 2 बेडरूम आ गया। 12 बजे में काट दिया तो सो इस तरीके से हमारे पास 2 बेडरूम का लेआउट है, 3 बेडरूम का लेआउट है, एंड ये 4 BHK का लेआउट है। 4 BHK का कारपेट एरिया है 1973, लगभग 2000 स्क्वायर फीट का हमारे पास 4 बेडरूम है विद प्राइवेट पूल। ये पूरा इसका लेआउट है। ये मैं शेयर करूंगा, एक बार आप ग्रुप में भी देख लेना। अगर आपको लगता है कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें। ये हमारा नितिश भाई, मीटिंग खत्म होने के ना 2-3 घंटे बाद शेयर करना, बिकॉज आई विल शेयर द ग्रुप लिंक टू एवरीवन। जो भी लोग ज्वाइन कर लेंगे फिर उसके बाद आप शेयर करना प्लीज। डन 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 डन, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। तो अभी हमारा फोकस ये रहेगा, अगर कोई इनकेस, मैं एक प्रोजेक्ट आपको सिर्फ एक उसका लेआउट दिखा रहा हूँ। अगर इनकेस कोई कहता है मुझे बुर्ज खलीफा के पास चाहिए, तो हमारे पास एक प्राइम प्रोजेक्ट है, नेम है बेज 101। थोड़ा इसका मैं बता दूं, ये बिजनेस वे में है, ठीक है। लोकेशन बहुत प्राइम है, इसकी बहुत प्राइम लोकेशन है। इसमें कितना फर्क है? हाँ, बेज 101 प्राइस में क्या फर्क है? ठीक है। इसमें 101 का मतलब है इसका जो टोटल टावर है वो 101 फ्लोर है। बुर्ज खलीफा 163 है, ये 101 है। पूरी विसिनिटी का सबसे हाईएस्ट टावर है। पूरे बिजनेस वे में ऐसा अभी टावर नहीं है इतने हायर फ्लोर का। इसमें ग्राउंड प्लस में शॉप्स हैं, अगेन वही जैसे आपका शोरूम्स रहेंगे। ग्राउंड टू 19 पूरा पोडियम है। 19 फ्लोर तक कोई रेजिडेंशियल फ्लोर ही नहीं है। 20th फ्लोर इज द फर्स्ट फ्लोर। बेस 101 में 20th फ्लोर इज द फर्स्ट फ्लोर। 20 से लेकर और 101 तक इसमें पूरे अपार्टमेंट्स है, जिसमें स्टूडियो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK है। लोकेशन बहुत प्राइम है, नियर टू शेख जायद रोड, 4 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस टू बिजनेस वे मेट्रो स्टेशन। 4 मिनट वॉकिंग टू बिजनेस वे मेट्रो स्टेशन। ये इसका लेआउट है। बुर्ज खलीफा में कभी इसका आपका वीडियो दिखाऊंगा, बिल्कुल बुर्ज खलीफा इसके सामने है। आप इसके ग्राउंड फ्लोर से भी पूरा बुर्ज खलीफा का व्यू देखेंगे। एक हम इसको भी आप देख रहे हैं बिजनेस वे मेट्रो स्टेशन विद इन 1 मिनट, तो आप इसको 5 to 6 मिनट मान के चले वॉकिंग डिस्टेंस। भाई इसका प्राइस सेगमेंट कहाँ से शुरू होता है? इसका अभी जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से 2.1 के आसपास से स्टार्ट होता है,
वैसे इसका 1.2 से स्टार्ट था। 2.1 क्या मिलियन दिरहम? 2.1 मिलियन अच्छा, दिरहम। मतलब मोटा मोटा 5 करोड़ के हाँ, आसपास। मोटा मोटा 5 करोड़। मिलियन से स्टार्ट होता है भाई, बिलियन पे जाता है। जी जी। तो ये इसका लेआउट है बेस। हम ये बहुत अच्छी, मतलब बहुत वन ऑफ बेस्ट प्रोजेक्ट है हमारा। बट इसमें अभी इन्वेंट्री का थोड़ा अगर कस्टमर स्पेसिफाई है, उसको चाहिए तो निकालेंगे कुछ ना कुछ करके अगर कोई अवेलेबिलिटी होगी। बट अभी इसमें इन्वेंट्री कम है, स्टूडियो इसमें अवेलेबल ही नहीं है। कोई एक आधा अगर कैंसिलेशन में आता है तो मिल जाएगा। तो अगर आप इस पे भी फोकस रख सकते हैं। बट अभी हमारे पास तो क्योंकि नीतीश भाई, स्टूडियो, इसमें 100% का एप्रिसिएशन आया है क्या? इसमें एप्रिसिएशन मीन्स 100% है। हाँ, इसमें इस तो अभी मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ, थोड़ा सा वो आप क्लियर हो लोकेशन तो मैं जाएंगे। समझ गया, बट लाइक जैसे आपने बताया कि भाई लॉन्च 1.2 का था, अभी 2+ चल रहा है, तो हाँ। एप्रिसिएशन तो नहीं 100% भाई, होगा। नहीं, छोटा नहीं, साइज आप जो था वो उसका कॉस्ट शुरू होता था 1.5 जो उन्होंने हाँ, बताया। ओके। अब जो साइज स्टूडियो का अवेलेबल है वो cost 2.1 था, मिलियन का है। हाँ हाँ, वो स्टूडियो हमारा 1.2 से स्टार्ट था, वो अब सोल्ड आउट है, कुछ अवेलेबल ही नहीं है उसमें अब। भाई तो लॉन्च प्राइस में और अभी के प्राइस में कितना फर्क है? अभी का प्राइस बढ़ा नहीं है क्योंकि इसके 2 महीने ही हुए हैं अभी, तो अभी अच्छा। प्राइसिंग बढ़ा नहीं है। लेकिन आई होप कि आई थिंक ये नेक्स्ट मंथ बढ़ेगा इसका प्राइस आफ्टर जुलाई 110%। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से लेआउट है। सेम आप जैसे लेआउट देख रहे हैं सेम एज इट इज मिलेगा। लॉबी एरिया, रिसेप्शन एरिया, लिफ्ट एरिया, वही सेम 45+ एमिनिटीज। इसका इंटीरियर थोड़ा और यूनिक सा है। इसमें ये पूरा आप देख रहे हैं जिस तरीके से, ये आपका बेडरूम, लिविंग एरिया, किचन एरिया फुल्ली लोडेड, सेम जैसे डायमंड्स में है। ईच एंड एवरीथिंग आपको फुल्ली फर्निश्ड मिलेगा इसमें भी अभी। ठीक है। इसमें एज पर अप्रूवल, ठीक है। ये इसका एक्चुअल, मैं आपको इसका प्लॉट का एक्चुअल जिस दिन लॉन्च था उसका वीडियो दिखा रहा हूँ। आप देखिएगा कितना प्राइम लोकेशन है। ये प्लॉट है हमारा, लोग खड़े हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ये पूरा बिजनेस पे है सर, पूरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड 5 स्टार 7 स्टार होटल, बिल्कुल नियर टू 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। और जैसे ही ये कैमरा घूमता है, ये रहा बुर्ज खलीफा सर। वन ऑफ प्राइम लोकेशन में है ये हमारा तो ये बिजनेस जो पे। हम देख रहे हैं भाई, ये आप ही के प्लॉट पे खड़े हुए हैं लोग? जी जी, ये खड़े हैं ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा लॉन्च था, एक मिनट रुकिए। ये पीछे ये रहा अपना, ये आप हाँ, डेन्यू देख रहे हैं। हाँ, ये ओके, ये हमारी लैंड है। ओके, ओके। ये हमारी लैंड है। ठीक है। सो बहुत बहुत मतलब डिमांडिंग प्रोजेक्ट रहा और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई कस्टमर एक क्योंकि जब आप काम करेंगे तो कई कस्टमर आपको बिल्कुल माइंडसेट रखेगा कि नहीं, मुझे बुर्ज खलीफा के पास ही चाहिए। ठीक है। अगर आप बात करें तो बुर्ज खलीफा के अगर बिजनेस वे और जेएलटी लगभग इक्वल है एज कंपेयर, मतलब आप अगर रेंटल से कंपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर किसी भी इजी, अगर शॉर्ट टर्म रेंटल में बात कर रहे हो तो आप 10 to 13% कस्टमर को एश्योर कर सकते हैं कि सर 10 to 13% तक का आरओआई है शॉर्ट टर्म में। अगर आप वैसे कर रहे हैं जो सिंपल रेंटल है तो आप उसको 8 to 10% इजिली, बहुत इजी। क्योंकि जितनी भी यूरोपियन टेरिटरीज है, जितने भी एंटरप्रेन्योर एलिट वर्किंग प्रोफाइल है, जितने भी बिजनेसमैन हैं, और जितने भी आपका ये 7 स्टार और 5 स्टार के होटल की कैटेगरी है, ज्यादातर बिजनेस में और जेएलटी में है। तो रेंटल इनकम बहुत अच्छी है यहाँ पर, बहुत अच्छी है। ठीक है। ऑलरेडी सारा कुछ वहां पर चल रहा है। इसका भी मैं एक बार आपको लेआउट दिखा देता हूँ। ये हमारा फ्लोर प्लान है, सॉरी। तो ये हमारा स्टूडियो हो गया। इसमें आपने एंट्री करी, लेफ्ट में सेम किचन जिसको पेंट्री एरिया बोलते हैं, राइट में बाथ और वॉशरूम, फिर वही सेम आप देखेंगे कि बालकनी एरिया, बेड सेम रहेगा। ये भी आपका एग्जीक्यूटिव स्टूडियो है। इसमें आप ये स्टूडियो थोड़ा सा अलग है। आप देखें, आप जैसी पेंट्री से एंटर करेंगे, लिविंग एरिया इसमें अलग है और ये शटल लगी है बीच में। अगर कोई दिल्ली में है तो मैं उसको, हमारा यहाँ पर बना है सैंपल फ्लैट, तो ये शटल है। आप इसको शटल को मतलब प्राइवेसी रख सकते हैं। शटल आप लगा के एक प्राइवेसी आपकी बन जाती है। तो ये ऑप्शन दिया गया ऑलरेडी कि अगर आपको शटर लगाना लगा लो, वरना हटा लो। हाँ, ये डिपेंड है, आप दिन में हटा लो, रात को आप लगा सकते हो, डिपेंड ऑन कस्टमर टू कस्टमर। भाई आप बोल रहे सैंपल फ्लैट रेडी है इसका दिल्ली में? जी नहीं, दिल्ली में हमारे पास सैंपल फ्लैट है एक,
तो उसमें हम दिखा सकते हैं किस तरीके की शटल होती है, किस तरीके से व्यू। अच्छा, ओके ओके ओके। जी जी जी, इसका नहीं है, एक हमने बना रखा है दिल्ली वाली ब्रांच में, ठीक है। ये 1 बेडरूम है एज इट इज। ये प्रेसिडेंशियल सूट है। प्रेसिडेंशियल सूट हम उसको बोलते हैं जो 1 BHK प्लस पूल हो। दुबई में प्रेसिडेंशियल सूट का मतलब है 1 BHK प्लस पूल, इसको हम प्रेसिडेंशियल सूट बोलते हैं। तो इसमें टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, इसमें आपको थोड़े टाइप मिल जाएंगे। 1 बेडरूम में देखिए 1, 2 और C, तो 3 टाइप के 1 बेडरूम है। डिपेंड ऑन लेआउट, ये डिपेंड करते हैं। कोई 754 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, कोई 670 है और कोई 941 है। तो डिपेंड ऑन किस तरीके का लेआउट या किस तरीके की अवेलेबिलिटी मिल रही है। 2 बेडरूम में भी आप देखेंगे तो 3 से 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन है 2 बेडरूम में। 3 बेडरूम में हम देखेंगे तो 3 बेडरूम में भी हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं और 4 बेडरूम में हमारे पास एक ऑप्शन है। ये इसका लेआउट है। नीतीश भाई, एक मेरे को क्वेश्चन है, मुझे ना उसमें बहुत ज्यादा डाउट है। जब जी मिर्जा से बात हो रही थी लंच करो ना, कि जो 6% रिटर्न जो बता रहे थे ना जी, उसमें उन्होंने बोला कि 6% रिटर्न देंगे और हमको मेंटेनेंस नहीं देना। मुझे उसमें बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। नहीं इसमें डाउट नहीं भाई, बिकॉज नहीं, 6% नहीं, MG है। सर मैं आपको बता रहा हूं, अगर डेन्यूब आपको लीजिंग करा के दे रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोजेक्ट है स्पोर्ट्स बाय डेन्यूब, जो स्पोर्ट्स सिटी में प्रोजेक्ट है, बिल्कुल शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे, और एक फेस उसका जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उस फेसिंग में है। अगर आप उसमें हमारे पास हम जो लीज गारंटी दे रहे हैं उसमें हम अभी मिनिमम मीटिंग चल रही है, वो जिस मीटिंग अभी चल रही है ना, वो मीटिंग अभी चल रही है, ठीक तो है। अगर आप आपकी मिस कर दिया हाँ, अमित भाई उसके की बाद आवाज ने मिस कर दिया। क्या बोले, दोबारा बताइए। मैं बोलता हूँ अमित भाई, हो गया? हेलो। तो हमारा एक प्रोजेक्ट है स्पोर्ट्स बाय डेन्यूब, जो स्पोर्ट्स सिटी में है, जहाँ पर हमारा जितने भी दुबई में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है स्पोर्ट्स सिटी में ही होती है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल शेख मोहम्मद बिन जायद रोड हाईवे पे है। प्राइसिंग भी बहुत रीजनेबल है इसकी, और एक इसका फेसिंग ICC जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होते हैं उसकी है। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के जस्ट बगल में हमारा वो प्लॉट है। अगर वहां पर आप हमसे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें हमारी लीज गारंटी है, ठीक है। अब लीज गारंटी 6 to 10% की है। 6 to 10% का मतलब है कि मिनिमम 6% तो आएगा ही आएगा, बाकी एज पर एक्चुअल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको रेंटल 6 to 10% में 8% मान के चलते हैं, अगर एज पर एक्चुअल जब आपका रेंटल होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी बनते ही एकदम रेंट नहीं होती है, 45 to 60 डेज का समय लगता है, तब भी आपको 6% रेंट आएगा। तो अगर मैं मिनिमम भी ले लूं 8% के आसपास, तो आपका 8% रेंटल पर ईयर जो भी उसका रहेगा, आपका जो भी 5% 10% का एप्रिसिएशन रहेगा, 3 इयर्स की लीज गारंटी है। 6% मिनिमम, मैक्सिमम 10%, तो 8% लेके चल रहे हैं। और 3 साल तक आपको कोई भी मेंटेनेंस और कोई भी अदर चार्जेस नहीं होगा। आपका सिंपल रेंटल आपको मिलता रहेगा। किसी भी तरीके का डाउट, किसी भी तरीके का कोई भी आपको डाउट नहीं रखना है, क्योंकि ये डेन्यूब बोल रहा है। डेन्यूब आपको इसको जो भी वर्बली कन्वर्सेशन कर रहा है वो रिटर्न में देगा, तो आपको 3 इयर्स तक कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना। सेकंड थिंग, हमारे हर प्रोजेक्ट में हम आपसे रेडी टू मूव इन तक प्रॉपर्टी कॉस्ट का सिर्फ 65% to 70% लेते हैं। हम आपसे हैंडओवर तक कोई भी फुल्ली पैसा नहीं लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में आपको रेडी टू मूव इन तक सिर्फ प्रॉपर्टी कॉस्ट का 65% देना है। आप समझिए 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ 30 लाख देना है। जैसे ही हैंडओवर आएगा, बाकी का जो रेस्ट ऑफ 35% है वो आपको आफ्टर हैंडओवर देना है। लेकिन आपको जो रेंटल आएगा वो 2 CR पे आएगा, ना कि जो आपने पैसा दिया है 1 करोड़ 30 लाख। ये भी आप समझिएगा, आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, रेडी टू मूव इन तक आपने प्रॉपर्टी की कॉस्ट 1 करोड़ 30 लाख दी। जैसे ही हैंडओवर हुआ, लेकिन आपका जो रेंटल आएगा वो 2 करोड़ पे आएगा। तो 2 करोड़ की लीज गारंटी दे रहे हैं आपको बिल्डर। तो आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट इसमें नहीं रखना, तो ये हम आपको रिटर्न में देंगे। ठीक है, इसका मतलब है अगर मिनिमम 6% भी है तो 9% तो दिख रहा है, क्योंकि 1 करोड़ 30 लाख पे कैलकुलेट करोगे ना आप, ROI तो इन्वेस्टमेंट पे करोगे। देखिए सर, आप दुबई में काम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि 6% अगर बिल्डर कोई भी गारंटी दे रहा है, तो बिल्डर इतना बेवकूफ नहीं है कि 6% की गारंटी दे रहा है। उसको पता है मार्केट में 7-8% चल रहा है, इसलिए वो 6% की गारंटी दे रहा है। तो 6% तो आप ये है कि रेंटल मिलेगा या नहीं, आप इसको मान के चले 8 to 9% के आसपास बैठेगा रेंटल।
तो अगर आपको 2 न- करोड़ का 8% भी मिला, आप लगाइए, और आपने दिया 1,30,00,000 है, तो कितना एडवांटेज है, मतलब So actually आपका जो नितेश भाई सुमित भाई का यही कहना था कि आपकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पोजेशन पे 1,30,00,000 रुपए हमने पे करा, तो जो रेंटल आ रहा है अगर मैं 1,30,00,000 पे कैलकुलेट करूँ तो 8-9% बनता है। तो एज अ सेल्स 100%, पिच जी आप जी 8-9% की बात कर सकते हैं। दिस बात इज द कर सकते हैं, पॉइंट डेफिनेटली जो सुमित भाई कह रहे थे। वो तो नहीं, सुमित भाई तो 8 to 9%, 6% में कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वैसे भी 8, अगर आप वही कह रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं कि ये 6% तो मिनिमम है, आप इसमें मिनिमम 8% मान के चलिएगा, तो वो 10-11% के आसपास बैठेगी एज पर बिल्कुल ठीक, पेमेंट प्लान। बिल्कुल ठीक है, तो बिकॉज भाई ये तो जब एमजी फ्लैट है। खाली रहेगा, जब फ्लैट खाली रहेगा तो 6% ही मिलेगा ना। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो है ही बट सर, वो तो रिटर्न में है, वो तो रिटर्न में है। वो तो एमजी है, मतलब जैसे कमर्शियल में यहाँ पर एमजी मिलती है कि भाई खाली है चाहे भरा हुआ, 6% तो मिनिमम हम देंगे ही देंगे। 6% तो आपको मिलेगा ही उसके मिलेगा, ऊपर जो बढ़ेगा वो आपको ऊपर से मिल जाएगा। वो एज पर एक्चुअल आपका होगा। ठीक है भाई। जी ठीक है, तो अब आई होप कि अभी डाउट्स अपने या कोई भी सवाल है तो आप क्लियर कर लीजिए, बाकी दो प्लीज फोकस करिए। मेरी कल रिमैक्स की टीम से बात हुई थी दिल्ली ब्रांच से, और बहुत अच्छा, अभी कुछ हमारी मीटिंग्स भी अलाइन है संडे की। हमारा जो इवेंट है 14 को दिल्ली में हमारा इवेंट है, आप चाहें तो अपने चैनल पर आप अपने क्लाइंट के साथ आ सकते हैं, हमारी पूरी टीम वहाँ डेडिकेटली अवेलेबल रहेगी। तो दिल्ली में अगर किसी का क्लाइंट है और आपको लगता है कि आप उसको लेके आना चाहें, तो हमारा रेडिसन ब्लू में हमारा एक इवेंट है जो डायरेक्टली कस्टमर और सॉरी डेन्यूब स्पॉन्सर कर रहा है, तो आप आए। तो अभी दिल्ली टीम से कल लोकेशन हमारी कौन सी मीटिंग है? रही है बहुत। जी। महिपालपुर रेडिसन। रेडिसन ब्लू मेन रोड पे ही है। सो इसी सैटरडे संडे को वो इवेंट है, 13 एंड 14 संडे संडे 14 को, यस इसी 14 को इवेंट है। तो इन केस वी हैव एनी क्लाइंट्स फॉर दिल्ली एनसीआर जो दुबई में इंटरेस्टेड है, सो आप लोग प्लीज बताइएगा, वहां पर ऑलरेडी टीम जा रही है दिल्ली से, सो क्लाइंट अटेंड हो जाएगा। जी। बाकी आपको लगता है, देखिए अभी तो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, जब आप क्लाइंट्स काम स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्वेश्चनिंग आएंगी, सवाल आएंगे, तो आप यू कैन कॉल मी, मेरा नंबर अभी शेयर हो जाएगा आपके साथ, आप मुझे कॉल करें, कभी भी कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आपको कोई इन्वेंट्री चाहिए हो, आपको कोई ब्रोशर चाहिए हो, कोई वीडियो चाहिए हो, और अभी 2 प्रोजेक्ट पे आप फोकस करें, दोनों की बहुत प्राइम लोकेशन है, बहुत ही डिमांडिंग है। जब आप दुबई बेचेंगे तो लोग ज्यादातर शेख जायद रोड पे ही आपसे डिमांड करते हैं, बुर्ज खलीफा के आसपास या दुबई मरीना के आसपास ही डिमांड करते हैं, और हमारे पास दोनों प्लस पॉइंट है, हमारे पास दोनों प्रोजेक्ट हैं। अगर आपसे कोई कहता है सी व्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक और प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेंट्री बहुत कम है इसलिए मैं वो बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कहता है कि जी सी व्यू चाहिए सिर्फ, तो उसके लिए भी मेरे पास प्रोजेक्ट है। ओशियन, अगर आप बालकनी से थोड़ा सा तेज कूदेंगे तो सीधा सी पे ही गिरेंगे, ऐसा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सी के ऊपर, मैं उसकी लोकेशन में होके आया हूँ, बहुत माइंड ब्लोइंग लोकेशन है। मैरीटाइम वाला है ना? जी 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 जी, मैरीटाइम। ठीक है सर, आई होप कि कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी इस मीटिंग के बाद, और जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, कोई भी अगर आपका सवाल रहे तो मेरा नंबर है, और मैं अभी अमित भाई शेयर भी कर देंगे, तो आप मुझसे कभी भी एनी टाइम आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा हैदराबाद से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, एक इवेंट करा था हमने, मैं उसमें इन्वॉल्व था, वहां से एक सेल आई हमारी, तो रिमैक्स ने बहुत अच्छा कराया हमेशा। अभी दिल्ली टीम दोबारा से स्टार्ट कर रही है, सो हम दिल्ली टीम के साथ, ऊपर वाले ने चाहा तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे अभी संडे को शायद। बहुत बढ़िया। सो मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर कर दिया है ग्रुप्स पे, सो प्लीज ज्वाइन करिए, जिसको भी दनूब में इंटरेस्ट है एंड प्रॉपर्टी सेल्स करने में इंटरेस्ट है, सो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर नितिश इज ऑलरेडी देयर, नितिश एंड मदिया बोथ आर देयर, सो वहाँ पर हम जो भी प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह हैं विल शेयर। ठीक है, डन। Great, thank you so much. थैंक यू सो मच। बहुत लंबा रहा सेशन, बट इट वाज अ वेरी हेल्दी सेशन, काफी सारे डिस्कशन रहे। जी जी, आज काफी चीजें क्लियर भी हुई अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच नितिश भाई। ओके थैंक यू brother. एवरीवन Bye. फॉर पेशेंस। 2 घंटे का सेशन था ये। ओके भाई, थैंक यू, बाय।